Assalamu alaikum, 9th class students. It is my lecture number 25 of chemistry, and we are going to start new chapter, that is chapter number 5, chemical bonding. 9th class students, up till now we have studied 3 chapters. Chapter number 1, Introduction to Chemistry. Chapter number 6, States of Matter. Then chapter number 4, Periodicity of Elements. We have done their exercises. I have given you the question answer, exercises, objectives, all the things we have done in detail. Please show me your register work. Do all this work in the copies, registers, and submit your registers in school for checking. And you know, it has been announced that the copy work, register work, it will contain the marks. It will carry the marks class, ठीक है ना? Marks will be announced later on. बाद में जो है marks के announce होंगे, इसके marks हैं. So please give the importance to the written work. Attendance के marks है, written work के marks है, ठीक है? तो जो है आपने ये सबमिट करवाना है, कॉपी सबमिट करवाना शुरू करें. अगर नहीं सबमिट करवाएंगे तो आपके मार्क्स जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे एग्जाम में से. तो एग्जाम्स में इसके मार्क्स रखे जाएंगे. सो प्लीज सबमिट योर वर्क इन स्कूल ऑन टाइम. Okay, now class, today we are going to start the new chapter, that is the chapter number 5. ठीक है? Chemical bonding. In this chapter we will study few topics. ठीक है? Like we will study about why do atoms form chemical bond, ionic bond, characteristics of ionic bond, covalent bond, characteristic of covalent compound, electronegativity and its values, ionic character of covalent bond, coordinate covalent bond, dative covalent bond, differences between covalent and coordinate covalent bonds, metallic bonding, intermolecular forces, hydrogen bonding. These all are given in your book. Okay? These all topics we will cover in detail. Okay, class. Now, what is the chemical bond? First of all, we will see what is the chemical bond. Chemical bond क्या होता है? ठीक है ना? हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं, चैप्टर स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है. व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड? द फोर्स व्हिच holds atom together, the force which holds atoms together in a molecule or a crystal is known as chemical bond. ठीक है? केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है. कैसी फोर्स है? ऐसी फोर्स है जो कि एटम्स को एक मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है. ठीक है? ऐसी फोर्स जो कि एटम्स को आपस में जॉइन रखती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में. राइट क्लास? द फोर्स व्हिच होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज नोन एज द chemical bond. I give you the example class. Okay, for example, like you know, when one hydrogen atom reacts with another hydrogen atom, it will form hydrogen molecule, right? If you want to write the hydrogen atom in the open form, then we can bond form we can show in this way. This one. It means bond is a line. And it shows the link between two atoms. ठीक है? ये हाइड्रोजन को शो कर रही है. ठीक है? H2 को शो कर रही है. क्या है ये? Force the bond is a link. ठीक है? Of the attractive forces between two atoms. यानी जो है एक बॉन्ड है, एक लिंक है. दो एटम्स के बीच में एक लिंक है. कैसा लिंक है? एक ऐसा लिंक है जो दो एटम्स को ज्वाइन करके रखता है. In this we can say that in one bond there will be two electrons. ठीक है? एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. राइट क्लास? क्या होते हैं?
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हम सिर्फ बॉन्ड जो है लाइन से शो करते हैं, लेकिन हमें पता होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लाइक इट इज हाइड्रोजन एटम, सो देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन and 1 electron of this hydrogen atom. So when 2 electrons combine, they will form one bond. ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। इन दोनों ने आपस में जो है आपस में ये ज्वाइन हो गए और इनमें अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गई, अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो गई, ठीक है ना। अट्रैक्शन इनमें आपस में तभी एक जगह पे ये जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, टुगेदर है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ना होती, रिपल्सिव फोर्स होती, यानी अपोजिट फोर्स होती, एक दूसरे को दूर करने की फोर्स होती, तो क्या होता, ये आपस में लिंक नहीं रह सकते थे, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, रिएक्शन की वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो गई है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में नियर आके उन्होंने आपस में एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर दिया है, दैट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, राइट क्लास। सो दैट इज द केमिकल बॉन्ड, इट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ द केमिकल बॉन्ड। और हम बहुत आगे और बहुत इसकी टाइप्स वगैरह भी स्टडी करेंगे क्लास। ये सिंपल सी चीज है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज शोन बाय अ लाइन, एक लाइन से शो करते हैं इसको, एंड इट शोस लिंक बिटवीन एटम्स, एटम्स के बीच में लिंक को शो करता है ये, और ये एक लाइन से शो करते हैं। जो ये लिंक होता है ये अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है 2 एटम्स के बिटवीन, ठीक है। ओके, नाउ क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, formation of a chemical bond, ठीक है। the topic is formation of a chemical bond. So that is the formation of a chemical bond, यानी chemical bond की formation कैसी होती है और वो किस तरह से बनता है। chemical bond की formation कैसे होती है, chemical bond किस तरह से बनता है, ठीक है। केमिकल द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो है ये आपके पास बेसिकली 2 तरह से बनता है, ठीक है ना। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो 2 तरह से होती है, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. From the elements, the valence electrons are either transferred from outer shell of one atom in the outer shell of another atom or shared between them. This produces a chemical bond, ठीक है। देखिए मैं बुक से इसके जो वर्डिंग रीडिंग कर रही हूँ। ये केमिकल बॉन्ड जो है किस तरह से फॉर्म होता है। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो ऑटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक आई गिव इट एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये है हाइड्रोजन, प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 0, ठीक है। In the outermost shell there is 1 electron, ठीक है, it is K shell, right. There is another atom of hydrogen, P is equal to 1, neutron is equal to 0, same atom है, ठीक है। In the outermost shell there are 1 electron, ठीक है, of hydrogen in the K shell. First shell is a K shell, first shell है K shell है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, एक तरीका है ट्रांसफर, इसे कहते हैं ट्रांसफर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसमें इसे कहते हैं ट्रांसफर, ठीक है। या फिर क्या होगा, ये दोनों एटम करीब आएंगे और आपस में शेयरिंग कर लेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा साथ में, और ये जो है शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करने के बाद जो है ये मॉलिक्यूल फॉर्म कर देंगे। तो कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें शेयरिंग होती है और कुछ मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर जो है वो देखने में आता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके बिटवीन हो रहा है, ये डिपेंड करता है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से किसी क्या कंडीशन है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है वगैरह, सब चीजें इसमें नोट होती हैं, राइट क्लास। बट बेसिकली देयर आर 2 ways ऑफ फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड, 2 तरह से है। वन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell, ठीक है ना। फ्रॉम व्हाट इज द outermost shell, सबसे बाहर वाला जो शेल होता है, ठीक है। फ्रॉम ये है किसी एटम में KLM शेल है तो M शेल से ट्रांसफर होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell, ठीक है। देयर आर आल्सो जो outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
यानी जब भी इसमें होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, राइट क्लास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। नंबर नेक्स्ट इज द शेयरिंग, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जो दो एटम होंगे वो आपस में शेयरिंग कर लेंगे, शेयरिंग करने के बाद जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये 2 मेथड है क्लास, ठीक है। इन द लास्ट आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन आंसर बाद में दूंगी। अच्छा अभी एक और चीज पढ़ते हैं हम, डुप्लेट रूल एंड द ऑक्टेट रूल। व्हाट इज द डुप्लेट रूल एंड व्हाट इज द octet rule? Because in the sharing or in the transfer of electron, the atoms follow the duplet rule or they follow the octet rule, ठीक है। तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लेट रूल, व्हाट इज द डुप्लेट? डुप्लेट रूल इज रूल ऑफ 2, ठीक है ना, यानी 2 का रूल है, डुप्लेट का मतलब 2 है, ठीक है। रूल ऑफ 2, डुप्लेट रूल, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम हैव द स्टेबल, they follow the, they have the stable outer shell of 2 electrons, so they follow the duplet rule, ठीक है ना। सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम एटम जो है, ठीक है, ये जो है डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं? देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन P1, न्यूट्रॉन इज 0, यू नो, एंड K इज 1, इन द K shell there is 1 electron, ओके। अच्छा क्या है इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है इसमें? 2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन और आ सकता है क्लास? 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ सकता है, तो क्या हो जाएगा? इसका K shell कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2n2 फार्मूला। आप लास्ट लेक्चर में 2n2 फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, 2n2 फार्मूला आपने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इन द अकॉर्डिंग टू द 2n2 फार्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2n2 फार्मूला इन K shell देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2n2 फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या है क्लास, ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें। K shell 2 इलेक्ट्रॉन, L shell 8 इलेक्ट्रॉन, M shell 18 इलेक्ट्रॉन, N shell 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो है K2n2 फार्मूला को फॉलो करके इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बनती है इन शेल्स में, ठीक है। तो K shell में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, और हाइड्रोजन में ऑलरेडी 1 है, तो क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और आ सकता है, ठीक है क्लास। अच्छा नाउ लुक एट द कंडीशन ऑफ हीलियम। हीलियम, प्रोटॉन, These both are the first period elements, ठीक है ना, फर्स्ट पीरियड में आते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, और ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है हाइड्रोजन फैमिली जो कहलाती है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जो है हाइड्रोजन फैमिली, ठीक है ना। अच्छा हीलियम P is equal to 2, न्यूट्रॉन is equal to 2, ठीक है। इन द K shell there are 2 electrons, K shell में क्या है? 2 electrons है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है, लाइक आई कैन राइट हियर, हाइड्रोजन 2He4, यानी एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, ठीक क्लास। अच्छा यहाँ देखिए आपके पास जब इसका प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन 2, यानी 2 + 2 4 आ जाएगा ना मास नंबर, ठीक है। अच्छा ये राइट, जिनको एटॉमिक नंबर क्लास, एटॉमिक नंबर मास नंबर हमेशा याद रखें, इसलिए कि एटॉमिक नंबर मास नंबर हर जगह भी यूज होगा, और मैं हर जगह आपको बता नहीं सकती हूँ। चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में हमने बहुत डिटेल में जो है स्टडी किया था हमने, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो है एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होता है, तो ये आपने जो है हमेशा याद रखना है। अच्छा यहाँ देखिए हीलियम में क्या है आपके पास? प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2 और K shell में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट है। हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज its outermost shell is complete according to the 2n2 formula, ठीक है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसमें नहीं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है, धीरे को दे सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता, इसके outermost shell में और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ओके क्लास। सो दैट इज द अबाउट द डुप्लेट रूल, यानी ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम्स फॉलो द डुप्लेट रूल, इसके अकॉर्डिंग आते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इट इज कॉल्ड एज रूल ऑफ 8, ऑक्टा मींस 8, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल जो है क्या है? ऑक्टेट रूल हमारे पास क्लास ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, और फॉलो कर सकते हैं वो। अच्छा देखिए, when an atom of one element chemically combines with the atom of another element, both atoms usually attain a stable outer shell consisting of 8 electron octet rule, ठीक है। यानी जब कोई एटम जो है अकेला किसी के एटम के outermost shell में, फॉर एग्जाम्पल आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ
nitrogen. Okay, nitrogen. 7, 14. Okay. Atomic number is 7, mass number is 14. Okay. In the nucleus, there are the 7 proton. Neutron will be 7. 14 बन रहा है, ठीक है ना. In the first shell, there are 2 electrons. K shell. ठीक है. The next shell, there will be 5 electrons. ठीक है. 2 और 5 7 हो गए. अच्छा, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो करूं, ठीक है, लाइक 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो करूं पॉइंट्स फॉर्म में, इट इज 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन. ओके. अच्छा, देखिए यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5. ठीक है. अब क्या है, ये 2 पेयर फॉर्म में है, ये 2 पेयर फॉर्म में है, ये पेयर फॉर्म में है. इलेक्ट्रॉन्स लाइक टू बी रिमेन इन द पेयर फॉर्म. ठीक है. पेयर फॉर्म में स्टेबल होते हैं. तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में है. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में है और एल शेल में जो है ये 2 पेयर है और एक अनपेयर्ड है. ठीक है. अब क्या होगा, ये इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, राइट. तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इसका मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इसके पास स्पेस है कि ये 3 और इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन द रेडिएशन. रेडिएशन क्या होगा, वो डिपेंड करता है इस पे. ओके. इलेक्ट्रॉन रेडिएशन के लिहाज से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो डिपेंड करता है. 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बट डिपेंड्स. लेकिन वैसे क्या है, अगर देखा जाए अपेरेंटली इट हैज द स्पेस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स. 3 इलेक्ट्रॉन्स में और आ सकते हैं. ठीक है. अच्छा, क्या होगा, सपोज कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम सपोज करते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सपोज. ठीक है ना. तो क्या होगा, ये इसका ऐसे ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा. इसका यहाँ से ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट क्लास. तो जो है पेयर कंप्लीट हो जाएगा. यानी पेयर जब कंप्लीट होता है तो क्या होता है कि ऑक्टेट रूल फॉलो होता है. और ऑक्टेट रूल जब फॉलो होता है तो जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टेबल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि पेयर फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं. दिस वन एग्जांपल. ठीक है. इस तरह से और एग्जांपल आप देख लीजिएगा. और इसमें क्या होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा. ऑक्टेट जो हाइड्रोजन जो एटम्स है वो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जो एटम्स हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, क्योंकि वो स्टेबल हो जाए, पेयर फॉर्म में आ जाए. तो जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए स्टेबिलिटी गेन करते हैं, अटेन करते हैं. ठीक है. अटेन द स्टेबिलिटी बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल. नाउ क्लास वी हैव डन इट. ठीक है. ये हमने ऑक्टेट रूल और डिफरेंट रूल देखा है. नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड को हम स्टडी करेंगे. ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर है, तो इसलिए मैं आपको जो है एक टॉपिक कवर करवाऊंगी. ठीक है. अगर अभी मैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दिया तो वो मेरा कवर नहीं होगा और बहुत ज्यादा लंबी लेक्चर हो जाएगा, जो आपके लिए हो सकता है बर्डनाइज हो जाए, मुश्किल हो जाए आपके लिए. इसलिए मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाह रही हूँ. ठीक है. तो मैं आपको सिर्फ आज के लिए इतना टॉपिक है, इसी को समझें, इसको दोबारा लिस्टिंग करें, इसकी वॉच करें इसे. और जो है हम गिविंग द होमवर्क. ठीक है. होमवर्क दे रही हूँ आप क्लास. होमवर्क क्या है, क्वेश्चन आंसर है. डिफाइन केमिकल बॉन्ड. डिफाइन केमिकल बॉन्ड, ये आपने डिफाइन करना है. ठीक है. आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्लास बुक पेज नंबर. वैसे तो आप लोग ग्रोन अप स्टूडेंट्स हैं, आप खुद कर सकते हैं इस चीज को, कोई मुश्किल नहीं होगा, बट आई गाइड यू. ठीक है. बुक पेज नंबर 78 पे लास्ट लाइन से, राइट क्लास, वहां से कर लीजिएगा. इसकी डेफिनेशन है, आई एम रीडिंग द फोर्स व्हिच holds atoms together in a molecule or crystal is called the chemical bond. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, ये explain formation of chemical bond. ठीक है. इट इज द एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्लास. इसका आंसर अगर आप देखना चाहें, ठीक है, तो आपको इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा. लुक एट दिस पेज नंबर 79. पेज 79. पेज है 79. ठीक है. इसकी लाइन नंबर है 1 2 3 4 5 6 लाइन. 6 लाइन से स्टार्ट है ये. ठीक है ना. 6 लाइन से स्टार्ट है क्लास ये, राइट. अच्छा, 6 लाइन से ऑनवर्ड जा रही है. 6 लाइन से स्टार्ट है. हम स्टार्टिंग देखिए, आप देख लें वहां पे. इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, क्लास ये देखें. ठीक है. इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम द एलिमेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द outer shell of one atom to the outer shell of another atom or shared between them. This produces a chemical bond. ठीक क्लास. ये इसका 4 लाइन का आंसर है, राइट क्लास. दिस प्रोड्यूसेस अ केमिकल बॉन्ड. यहाँ तक इसका आपने आंसर करना है. ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया इसका. नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डुप्लेट रूल.
ये 2 क्वेश्चंस हो गए क्लास, ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस। डिफाइन, या ऐसे करना, व्हाट इज, क्वेश्चन 3 है आपके पास, व्हाट इज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, ठीक है। व्हाट इज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, राइट क्लास। डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या है, इसी जो आंसर, ये आंसर नंबर 2 खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है क्लास। इसके बाद ही आपको मिल जाएगा डुप्लेट रूल का आंसर। डुप्लेट रूल का आंसर देखिए, ये देखिए, व्हेन एन एटम, जहाँ क्वेश्चन 2 फिनिश हुआ है उसके आगे वाली लाइन देखिए क्लास, व्हेन एन एटम ऑफ वन एलिमेंट केमिकली combines with the atom of another element, both atoms usually attain a stable outer shell consisting of 8 electrons. It is called as octet rule. Octet लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, तो इसका आप लिख देंगे, it is known as octet rule. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखें हम, डुप्लेट रूल। पहले डुप्लेट डिफाइन करेगा, फिर ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, डुप्लेट रूल देखें क्लास, इसी के आगे वाली लाइन, ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम हैव द स्टेबल आउटर शेल ऑफ 2 electrons and they follow the duplet rule. Right class? They follow the duplet rule, or it is called the duplet rule. Right class? So we have done 3 questions. What is chemical bond? Explain the formation of chemical bond. एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, how does the chemical bond form? ठीक है, ये भी हो सकता है, तो इसको आपने लिखना है। और व्हाट इज डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल, ये आपने करना है क्लास प्लीज कॉपी सबमिट करवाएं, रजिस्टर सबमिट करवाएं। लिस्ट पूरी मेंटेन हो रही है, और जिसके कॉपी इस वक्त नहीं आ रहा, ठीक है, और उसको ज़ाहिर है मार्क्स नहीं मिलेंगे, so it will affect your performance in the exam. So please take it seriously and do the homework on time properly. If you have any query class, you can ask me. कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और जो है अपना वर्क कंप्लीट पे करें। few students are showing me the homework, दिखा रहे कुछ होमवर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, और जो है कुछ स्टूडेंट का बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो जो है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, राइट। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, और जो है कोशिश करें कि होमवर्क जो है आपका पेंडिंग में ना जाए। जब पेंडिंग में जाएगा तो होमवर्क आपको ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आपको फिर बाद में सारा होमवर्क करना मुश्किल लगेगा। सो प्लीज़ डू योर होमवर्क ऑन टाइम इन योर कॉपीज, ओके। थैंक यू, इन योर रजिस्टर्स, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।